جی مسیحا کے قدرت برے نام میں آپ سب کو سلام. جو یہاں چرچ میں موجود ہیں ان کی خدمت بھی سلام، اور جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں اور بعد میں دیکھیں گے، آپ سب کی خدمت میں مبشر جلیل خدا کا خادم تصور سیمل سلام پیش کرتا ہوں. آج پھر موقع آ گیا ہے کہ ہم رب کے کلام میں سے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے کچھ سیکھ سکیں. سو ہم رب کے کلام کو سننے کے لیے متوجہ ہوں گے. میں حوالے بتا دیتا ہوں، 2 چھوٹے حوالے اور 1 بڑا حوالہ ہے. دونوں زبانوں میں ہوں گے، اردو میں اور پنجابی میں، اور پھر ہم رب کے کلام پہ غور و فکر کریں گے. سو جو میرے ساتھ بائبل کھولنا چاہتے ہیں، حوالے دیکھنا چاہتے ہیں، چرچ میں بھی اور یہاں پر بھی میں ان کے لیے حوالے بتا دیتا ہوں. پہلا حوالہ پرانے عہد نامہ میں سے ہے، خروج کی کتاب باب نمبر 34 آیت نمبر 20. اس کے بعد ایک حوالہ اور پرانے عہد نامہ میں سے ہے، زکریا کا صحیفہ باب نمبر 9 اور آیت نمبر 9. اور اس کے بعد تیسرا حوالہ ہوگا لوکا کی انجیل، عہد تازہ میں سے لوکا کی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 28 سے 40. مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو آن لائن مجھے آیا کمنٹس کے، کچھ لوگوں کو بائبل کے نام سمجھ لگتی، میں بتاتا چلوں. لیٹ می repeat them in English as well. The first reference is from Old Testament book of Exodus chapter 34 and verse 20. And the other one is also from the Old Testament book of Zechariah chapter 9 verse 9. And the third one is going to be from the Gospel accounts, and that is Gospel of Luke chapter 19 verses from 28 to 40. اور ابھی اردو میں پڑھنے کے لیے میں ایڈت دیدی سے درخواست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں اور اس حوالہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں، اور ایکولی ہم بھی بائبل کو سن کے اس کی سماعت فرما کے کر کے برکت حاصل کریں گے. سو جی دیدی تشریف لائیں اور ان حوالوں کو ہمارے لیے پڑھنے کی برکت حاصل کریں. جب تک وہ اوپر آتی ہیں آئیے ایک نعرہ لگاتے ہیں مل کے سارے اونچی آواز میں، بولو خدا یسوع مسیح کی جو زندہ آسمانوں پر اور جلد آنے والا. آمین آمین. تھینک یو گائز. خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام کہتی ہوں. اور آج ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب میں سے 34 چیپٹر میں اس کی 20ویں آیت کو. اس میں یوں مرقوم ہے، لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برا دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، پر اپنے سب پہلے اٹھے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے. یہ ایک وہ تھا حوالہ. دوسرا حوالہ جو ہے وہ زکریا کی کتاب میں سے ہے، اور 9واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت ہے. اس میں یوں مرقوم ہے، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یہ دوسرا حوالہ ہے. تیسرا حوالہ ہے لوک کی نئے عہد نامے کی انجیل میں سے، اس کے اندر لوک کا 19واں باب ہے اور اس کی 28 to 40 ورسز ہیں. اس کا باب ہے 19 باب ہے اور اس کا 28 ورس to 40 ورس ہے.
उसमें यूं मरकूम है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है, बैते फिगे और बैते अननिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावन को उसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, खुदावन को उसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर बिछा उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने और अमल करे जाने पर इसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। अभी पंजाबी में पढ़ने के लिए कुलदीप तशरीफ लाएंगी। जी कुलदीप आइए। सबको सलाम। मैं पढ़ूंगी कूच पाक 13 और 11 आयत तो 13 आयत तक। तो आओ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ। ਨਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਹਿਲੋਠਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਸਿੱਟੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੋ। क्योंकि मैं पढ़ूंगी जकरिया 9 और 9 आयत। हे सिय्योन दिए धीए बहुत खुश हो, हे यरूशलेम धीए ललकार, वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आउंदा है। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ ਲੂਕਾ ਉਹਦੇ 19 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ 40 ਆਇਤ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਤਗਫਾ ਅਤੇ ਬੈਤਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ। ਤਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਮੀਨ। जी बहुत शुक्रिया। आवाज़ मेरी सबको दुरुस्ती से आ रही थी? गुड 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 गुड। सो आज जो टॉपिक आपने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, मुझे याद करा क्या टॉपिक था बोला? मैंने लिखा हुआ था कुछ, आई थिंक आवाज़ मुझे ठीक दुरुस्ती से आएगी जी। हैं जी, नस्ल खर मैंने लिखा था। नस्ल खर की मुफीद है तो उसके आगे मैंने उसका मतलब भी लिख दिया था गधे। आज मैं बोलना चाहता हूँ गधों पर। पंजाबी जी की कहेंगे, आज मैं बोलना चाहना खोते होते। अभी पंजाबी का टेक्स्ट पढ़ा गया तो आज मैं बोलूंगा खोते पर। अब क्वेश्चन ये है, मुझे एक भाई ने पूछा, पादी साहब खोते आते? मैं कहा जी आज हम गधों पे बात करेंगे। उसकी वजह है, मैं क्यों बात करना चाहता हूँ। कलाम में अक़दस के सफ़ात को देखिए छान के। ये जो गधा है ना, गधा, इसका जिक्र कलाम अक़दस में 147 बार आया है। 147 times donkey appears in the Bible। तो मैंने सोचा खुदा का कलाम जब इस पे इतना जोर देता है तो फिर क्यों ना इस पे थोड़ी फिक्र कर ली जाए। और एक और मजे की बात बता दूं, ये कोई बड़ा मॉडर्न जानवर नहीं, ये इतना ही पुराना है जितनी पुरानी इंसानियत है। पहला गधा पता किसके साथ नजर आता है? किसी को याद हो? पहली दफा जब गधा देखते ना, अब्राहम के साथ है, जब वो अपने बेटे की कुर्बानी वो कोहे मोरिया पर करने गया तो याद है उनके साथ गधा था। नेक सामरी का गधा भी किसी को याद होगा, गुड समैरिटन्स डोंकी, वो बड़ा मशहूर है, बच्चों ने तो सबने सुना होगा, बड़ों ने भी सुना होगा। वो भी एक बड़ा नेक गधा में नजर आता है। फिर वो देखिए एक बलाम की गधी है, वो बोल पड़ी है ना। एक और गधे का बच्चा भी हमने नोट किया, जो दोनों बहनों ने पढ़ा है। यीशु मसीह ने गधे पर सवारी फरमाई है, उसे खरे मसीह कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये गधे का इतना जिक्र क्यों है? और एक मजे की बात आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प, बड़ी हैरत। जब भी गधे का जिक्र आएगा ना, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इंसानों को गधे कह रहा हूँ, लेकिन जब भी गधे का जिक्र आता है ना तो साथ ही कहीं इंसान के बच्चे का भी जिक्र आ जाता है। अब ये कलाम का एक स्टाइल है, कलाम का एक तरीका है, कलाम का एक अपना स्टाइल है, कलाम इस तरह से बातें करता है। मैं खरूज की किताब के 13वें बाब की 13वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। I'm going to read only one verse from book of Exodus chapter 13 verse 30। जरा समाप्त फरमाइए। खुदा के कलाम में लिखा है और बड़ा दिलचस्प होगा है। और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना, ठीक हो गया, आज चल रही है। और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डाल। आगे सुनिए, और तेरे बेटों में जितने पनोटे हों उन सब का फिदिया देना। गधों की बात हो रही थी चाहे कि गधे के पहले नर बच्चे का फिदिया देना है। पंजाबी च पढ़िया गया, उन्होंने छड़ा लें,
छड़ा लें, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ लें, बाय बैक कर लें। अभी जो हवाला इन दोनों बहनों ने पढ़ा है वो मैं आपके लिए वो भी पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। 34वें बाब की जरा 20वीं अध्याय में मुलाजा पड़ा है, अमेजिंग। मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ मैं हैरान होता हूँ। कहते सब पे लौटे 34 की 20 है, लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बरा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। आगे सुनिए, अभी आयत चल रही है, पर अपने सब पेलोठे बेटों का फिदिया दे। ये गधों की बात होते होते बीच में पेलोठे बच्चों की बात भी आ जाती है। खुदा कहीं ऐसा नहीं कर रहा, अगर किसी को गुस्सा लगे तो मुझे माफ फरमाइए, कि गधों के साथ हमने कंपेयर कर। वेरी स्ट्रेंज बात हो रही है गधे की, और साथ ही कहते अपने पेलोठे का भी फिदिया देना। और मज़े की बात सुने, हम जो उर्दू हिंदी पंजाबी वाले हैं, हमारे में तो जो हमारी जुबानें हैं ना, वो खोते का बड़ा इस्तेमाल कर दिया है ना। खर दिमाग सुने ना, खर दिमाग, वो बड़ा खर दिमाग आदमी है ना, खर दिमाग। असल में आप कहते हैं जिद्दी को बेवकूफ या बंदा जिन्होंने गुस्सा कोई सम पागल हो जाए। खर नस्ल खर, आज मैंने क्या कहा था टॉपिक है गधे, और खर दिमाग किसे कहते हैं? गधे के दिमाग वाला। वो कौन होता है? अक्लमंद नहीं होता, वो साइंटिस्ट को कभी खर दिमाग नहीं कहते, किसी बेवकूफ को कहते हैं खर दिमाग, बड़ा खर दिमाग वाला है नहीं। खर मस्त सुने, खर मस्त जो गंदी हरकतें करता है, बड़ा खर मस्त हो जाता है जी। एक और बड़ा लफ्ज़ हम बोलते हैं, गोश्ते खर, शब्द वहां सुने हैं, गोश्ते खर, खोते का गोश्त। अच्छा, इसका मतलब ये मजाजन यूज हुआ है, जिहड़ी चीज़ का मजा ना आए उन्होंने कहते हैं कि पका दा यार, ते गोश्ते खारे, गधे का गोश्त है ये, अच्छे लफ्जों में यूज नहीं होता गोश्ते खर के लिए उसको। अच्छा, एक और चीज़ जिसको कहते हैं ना बड़ा ही बेवकूफ बंदा है, उन्होंने कहते हैं खरबे तशदीद, शदीद खरब, शदीद खा रही है, देखिए बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। और एक और हवाला अपने शहर के कुछ लोग कहते हैं खरी, बड़ा खरी है जी तू, खरी जी खरी हरकत है ना, हमाकत वाली हरकत तो की है। खरबे दुम भी है जी, और बगैर दुम दे खोता। यानी ये जितने भी आपने उर्दू में मैंने लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ये सारे इसका मतलब क्या है कि बेवकूफ़ है, लेकिन बंदियां भी ऐसे यूज कर रहे हैं। पंजाबी में हमारे तो कल्चर में आम है कि बच्चों को हम खोते का पुत्र भी कह देते हैं जब वो बेवकूफ़ी की हरकत कर रहे हैं। अच्छी हरकत के लिए खोता यूज नहीं होगा, खोता जब भी यूज होगा किसी को कहने के लिए कि बेवकूफ है, पागल है, और ये वगैरह। और जैसे मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया है, बात बाय द वे, अगर आप कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा भी होते, अरबी में इसको हिमार कहते हैं, और अरबी लोग जब किसी को ना बड़ा बेवकूफ आदमी कहते हैं हिमारी, खोता है, बेवकूफ है। बाहर से कलाम में गधे के इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, हवाले बहुत। और अभी हमने पढ़ा कि किसी और जानवर का इस तरह से करनी है जिस तरह गधे का है, और गधे के बारे में कलाम में लिखा है तो इसका फिदिया देना, छुड़ाना। पंजाबी च लिखा जी छुड़ाई का किनू है, जो कैद होता है छुड़ा देना, इसको छुड़ा लेना। कहते इसके पहले बच्चे का फिदिया दे के इसको छुड़ा लो। और मजे की बात सुने, चारों अनाजील में मसीहा का गधे पर बैठने का वाक्य भी दर्ज है। सो मेरा माथा ठनका कि वाई शुडंट वी डू सम रिसर्च ऑन दैट टॉपिक। जब कलाम 147 मरतबा उस पर बात करता है तो आसमान पर जाकर रब सानू पूछ सकता है कि मैं खोतियां का 147 वाली जिक्र किया सी, डिड यू एवर टेक सम टाइम आउट टू मेक सम रिसर्च ऑन दैट टॉपिक? तो मैंने कहा चलो हम कर ही लेते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि गधों के हवाले से क्या कलाम बयान करता है। पहली बात सुन लीजिए, और मैं आपको मजे की बात, मैं पहले क्वेश्चन छोड़ दूं, गधा नापाक जानवर है, अनक्लीन एनिमल है, और मसीहा ने उस पर सवारी फरमाई है, उस पर बैठे हैं, अभी अब इसको देखेंगे। लेकिन रब जो है वो गधे के हवाले से बड़ी हिदायत करता है। पहली बात, अच्छा, जो भी जानवर अनक्लीन होता है उसकी दो निशानियां रब ने अपने कलाम में उनकी हिदायत फरमाई है। क्या क्या होती है जी? पहली बात, उसके जो खुर हैं वो चिरे हों, चिरे होने चाहिए, है ना, क्लोवन हूफ्स होने चाहिए। और दूसरा क्या है? जगाली करता है। ये दो निशानियां हैं।
अच्छा, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके पाँव तो चिरे हुए हैं, खुर चिरे हुए हैं, लेकिन वो जगाली नहीं करते। और कुछ जो है वो जगाली तो करते हैं लेकिन उनके खुर चिरे हुए नहीं है। लेकिन गधा जो है ना इसके खुर चिरे हुए हैं और ना ये जगाली करते हैं। ये दोनों अकाउंट्स पर एक नापाक जानवर है, अनक्लीन एनिमल है। और खुदा के कलाम में इसको नापाक बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। मैं एक और बात आपको बताता चल जाऊं। बहुत से लोग समझते हैं कि बस किसी को रब ने नापाक कह दिया, तैने कह दिया, उसकी जो निशानी देता है ना रब, उसके पीछे हमारे लिए सबक है। याद रखें, ये क्या मतलब है? उसके पाँव चिरे होने चाहिए। रब ने बनाया है ना, हमने तो नहीं बनाया ना गधा या जानवर या कोई भी, रब ने बनाया। लेकिन एक निशानी दी है, उसके पाँव चिरे होने चाहिए, वो हलाल है। एक क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता है कि उसके पाँव चिरे होने चाहिए। आपको मैं मजे की बात बताऊं, इसके अंदर एक हमारे लिए रूहानी सबक है मोमिनों, मसीहियों के लिए, बाइबल के मानने वालों के लिए। व्हाट डज इट मीन टू हैव अ क्लोन हूव्स? जब भी ऐसे तमाम जानवर जिनके क्लोन हूव्स हैं, चिरे हुए खुर हैं, जो मट्टी में से गुजरते, गारे में से गुजरते, और उनको देखें जब वो किसी पक्की जगह से तो गारे चो निकलते, उनके निशान जो है ना सिर्फ सादे सादे छोटे छोटे निशान लगेंगे, ज्यादा गंद नहीं लगेगा। लेकिन जिनके खुर चिरे नहीं है, घोड़ा और चीजें, वो जब निकलेंगे ना मड से, इतनी इतनी पीछे मट्टी भी छोड़ते जाएंगे, गंद छोड़ते जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, गंद छोड़ते जाएंगे। इसका मतलब है रब ने इसकी निशानी दे के हमें रूहानी तौर पर एक सबक सिखाया है कि हमारी वॉक जो है वो साफ होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं होनी चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए रहमत का बायस हो। हमारी वॉक जो है, हमारी गवाही जो है, हमारी आउटवर्ड लाइफ जो है, फिजिकल लाइफ जो है, फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है, फिजिकल टेस्टिमनी जो है, वो गुड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम हर जगह गुनाह के डब्बे छोड़े, बल्कि हर जगह गवाही के डब्बे छोड़े, गवाही छोड़े, पाक जिंदगी छोड़े। और एक और निशानी है पाक जानवर की, वो जगाली करते। ये क्या है? ये जगाली आपने देखा ना, जानवरों को जगाली करते, और क्या कहते हैं पंजाबी में से? जगाली, जब मुंह हिलाता है और बैठा होता है बड़े मजे से। गर्मी में आपने देखा होगा जानवरों को, गाय को, भैंस को, वो दरख्तों के नीचे बैठ जाती हैं और आराम से मुंह हिलाती जाती हैं, ऐसे जैसे कोई बड़ी मजे की च्युइंगम खा रही है, और मुंह में वो झाग भी बनती जाती है, एंड दे जस्ट सिट देयर रिलैक्स एंड एंजॉय। आपने देखा? ये क्या है? कहते हैं, साइंस कहती है कि वो जो खाते हैं ना, उसको दोबारा से बाहर निकाल के हजम करते हैं और दूसरे खानों में, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो दोबारा जो कुछ उन्होंने खाया होता है ना, उसको दोबारा चबाते हैं, उसको दोबारा हजम करते हैं। या तो मैं सोच रहा था रब ने देखिए क्लीन जानवर का एक और हमें सबक सिखाया है। और जब कलाम सुनते हो ना, तो सिर्फ सुनना नहीं, बैठ के मेडिटेट भी करना है, उस पे गौर भी करना है, उस पे अमल भी कर। अमल कौन करेगा? जो गौर करेगा, जो बैठ के उस पे मेडिटेट करेगा, वही अमल कर सकता है, अदरवाइज वो अमल नहीं कर सकता। अब ये दोनों चीजें किस में नहीं है? गधे में नहीं है। गधा नापाक जानवर ठहरा। मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब वो पैदाइश से पहले ही नापाक होता है, क्योंकि किसी भी इसराइली को रब ये कह देता था कि ये जानवर पैदा होते ही तूने क्या करना है, इसको छुड़ाना है, तुझे नहीं छुड़ाना तो फिर इसकी गर्दन तोड़ देना। गर्दन तोड़ने से मतलब इसको मार देना, इसको खत्म कर देना, ये मेरे काम का नहीं है। तो दो अकाउंट्स पर जो गधा है वो अनक्लीन एनिमल ठहरा कि ना तो उसकी आउटवर्ड वॉक बेहतर है, यानी जो हमें सबक सिखाया गया है, और ना ही वो इनवर्डली जो खुदा ने निशानी ठहराई है उस क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरता है, मुकम्मल तौर पर नापाक जानवर है। और हम जो इंसान हैं, किसी ने याद से ज़बूर गाने मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी। मैंने पहले कहा था कुछ तो है कि रब हमें गधों के साथ ही हमारा मेंशन करता है। क्या वजह है? हमारे दरमियान और गधों के दरमियान कोई ममासलत है। देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू पार्टीज। और पहले तो हमने देख ली कि हम भी गधे की तरह पैदाइश से ही नापाक है। सुनिए मेरी बात, बहुत से लोग कहते हैं ओ असी जी बच्चे ने बड़े मासूम दे, ऐसा हम गुनहगार तब नहीं बनते हैं जब हम गुनाह करते हैं। इंसान होना ही गुनहगार
हो जाने की तरफ हमें एक पहले धकेल दिया जाता है। हम गुनाह करने से गुनहगार नहीं बनते, हम गुनाह करते इसलिए क्योंकि हम गुनहगार हैं। इंसान की सरिश्त में गुनाह है। कभी ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें आपने देखा जब हम सब छोटे होते थे कि टॉफ़ी मुंह में डाली हो और अचानक अम्मी को पता चल जाए, अरे वो कहे कि टॉफ़ी खा रहे हैं और आपको मना किया गया हो, तो आप क्या कहेंगे? बच्चा क्या कहेगा? नहीं, मुंह में नजर भी आ रही हो तो कहेगा नहीं। ये किसने तोड़ा? मैं नहीं किया। किसका कसूर है? मेरा नहीं, है ना? उन्हें कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता, उनके अंदर इनबिल्ट है, वो लेके पैदा होते हैं। मनु विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मां, वो हमेशा से ऐसे ही पैदा होते हैं। और दूसरी बात सुने, गधे के बारे में मजे की बात तो, गधे की खुराक क्या है? ये ऊंट कटारे खाता है, ऊंट कटारे खाता है, थिसल्स खाता है। और ऊंट कटारे के बारे में बाइबल बयान करती है, ऊंट कटारे जमीन में क्यों उगाना शुरू किए थे? लानत की वजह से, आदम के गुनाह की वजह से जमीन में ऊंट और कटारे, थिसल्स एंड थॉर्न्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किए थे। और वही ऊंट कटारे गधा जो है वो खाता है। यानी उसकी फूड भी देखने कौन सी है? जो लानत का बाइस है। फूड वो है जो लानत की वजह से पैदा है, वो उसकी फूड भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि गधा जो है शरीयत में लानत के मातहत है। और हम भी जितने भी इंसान दुनिया में पैदा होते हैं, हम सारे गुनाह के मातहत हैं। और मजे की बात सुन लें, अगर हम थोड़ा सा पैरेलल कंपैरिजन देख रहे हैं, खुदा का कलाम होना चाहिए, उसमें गौर फिक्र होना चाहिए, लेकिन मैगजीन्स, टीवीज एंड अदर स्टफ, न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन हमारा खुदा का कलाम कहता है कि हम वो ऊंट कटारे को खाता है और हम खुदा का कलाम सुनने के बजाय ज़्यादा अखबारें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। और इसी तरह वो जो है वो खुदा वो अपने पीछे वो भी गवाही अच्छी नहीं छोड़ता और हम भी कई दफ़ा अपनी गवाही अच्छी नहीं। थोड़ा कंपैरिजन है हमारे और गधे के दरमियान जो हम रब के कलाम में देखते हैं। पहले ही से लिखा है जितने मसीह में नहीं हैं उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। जब वो पैदा होने से पहले ही खुदा हमें इसके लिए गुनहगार जो है वो ठहरा देता है। एक और मजे की बात सुने, लेकिन खुदा बड़ा मेहरबान है। उसने कहा इससे पहले कि गधा पैदा हो, खुदा ने उसकी माफी का, छुड़ाने का इंतजाम भी मुहैया कर दिया। की देना पड़ेगा जी? बरा देना है। अगर इसने बचना है तो किसी बरे ने कुर्बान होना है। तो ये बरा नहीं तो फिर इसकी गर्दन तोड़ने का, इसको मारना है, इसको खत्म करना है, इसको किल करना है। तो देखिए हमारा खुदा कैसा खुदा है। कोई गवर्नमेंट, कोई एनजीओ, कोई बंदा, कोई इंसान इस तरह का इलाज दे सकते हैं? देखिए खुदा ने पहले से उसकी छुड़ाने का इंतजाम कर दिया है। तो साढ़े 12 की रब दे कलाम च लिखा है असी हनूज अजे गुनाहगार ही सा, अभी गुनहगार ही थे, तो रब ने हमारी माफी का इंतजाम अपने बेटे के वसीले से किया है। मैं सोच रहा था कि जब भी यहूदी को पता होगा कि मेरे ये जो गधी है इसका भी बच्चा देना है, तो लैम्प का इंतजाम कर लेता होगा, क्योंकि गधे जो है ना उस दौर में बड़े ज़रूरी एक एनिमल था। आपको पता है इसकी सवारी भी की जाती थी, इस पर बहुत सारे काम किए जाते थे, और ये आपकी इमारत की निशानी भी थी कि हम बड़े रिच हैं, मेरे पास बहुत सारे गधे और गधियाँ हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि गधे को बचाने के लिए किस चीज़ की जरूरत थी जी? लैम्प की जरूरत थी। किसी लैम्प का मरना किसी बड़े की जिंदगी की जमानत था, उसके बगैर वो बच नहीं सकता था। बर्रा जो है उस गधे को जीने का मौका देता था, बर्रा जो है उसको जिंदगी इनायत करता था। अगर बर्रा ना दिया जाए तो फिर जिंदगी उसके पास कभी भी हो नहीं सकती। यहाँ पर क्या है, आपको पिक्चर देख रहे हैं? यहाँ पर एक लैम है और वो उस गधे के लिए, उस खोते के लिए अपनी जान देता है और उसको जिंदा रहने का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी फराहम करता है। स्टे विद मी गाइस, याद रखिए खुदा ने हम इंसानों के लिए भी, हमारे पास उम्मीद नहीं थी, बचने का कोई तरीका मौजूद नहीं था, हम गुनहगार थे, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम हनूज गुनहगार ही थे, तो मसीह हमारे लिए वो मर गया। जितने आदम में हैं वो मौत के मातहत है। हम जितने आदम की नस्ल है हम सारे वी आर डेस्टिन्ड टू डेथ।
लेकिन यहाँ पर हमें इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो नज़र आती है। ये तो था पुराने अहद का गधा, यानी वो लानत के मतहत है, वो जो है खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको मरना है, अगर उसको जीना है तो फिर उसको बरा देना पड़ेगा। इतनी बात तो तय हुई। अब मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ। नए अहद से बरे को ना सिर्फ छुड़ाना था, छुड़ा लिया जी बरे को और भी काम करना है। बरे को सिर्फ छुड़ाना ही नहीं, बरे को आज़ाद भी करना है। बरे को आज़ादी भी चाहिए। क्या ख्याल है? बहुत सारे क्रिश्चियन जो है दुनिया में यीशु मसीह के खून से धुल के पाक हो जाते हैं, अबदी ज़िंदगी पा जाते हैं, लेकिन वो गुलाम होते हैं। मैं भी आपको बिल्कुल खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने बांटूंगा। पर एक मुझे बात बताइए, मसीहा ने जब कहा अपने शागिर्दों को बुलाया और उन्हें कहा जाओ भाई फलां इलाके में जाओ, वहां पर की लिखा है तुम्हें गधा फिरदा टुरदा बंधा हुआ मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो जो गधा मेरे साथ नहीं, वो जो गधा वहां पर बंधा हुआ है, वो वहां पर बंधा हुआ इसलिए है आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो एक और आपको बड़ी मजे की ध्यान से, वो वहां पर खड़ा पता क्यों है? वो गधा उसके लिए कोई बर्रा कुर्बान हो। क्या है? वो वहां खड़ा नहीं हो सकता था। इसका मतलब उसके मालिक ने किसी बर्रे को कुर्बान किया होगा तो वो वहां पे है ना। उसके पास जिंदगी क्यों है? किसी बर्रे की मौत की वजह से। He is there, alive, living, moving, because a lamb has been sacrificed for his life. उसके मालिक ने जरूर उसके लिए कुर्बान किया होगा कुछ ना कुछ, इसलिए वो वहां पर खड़ा है। लेकिन मजे की बात है, वो खड़ा तो है लेकिन घूम फिर नहीं रहा, बंधा हुआ है, उथे बचा है। तो जब हम मसीहा के खून से, बरे के खून से, वो मैंने क्यों क्या कहा था, गधों में और हमारे दुनिया में बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो उन्हें देखनी पड़ेंगी। हम भी मसीहा के खून से आजाद हो जाते हैं, धुल जाते हैं। आफ्टर वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, वी स्टिल नीड लिबर्टी, फ्रीडम टू बी रिलीज्ड, वी नीड टू बी रिलीज्ड। और वो गधा वहां पर बरे की वजह से खड़ा तो है लेकिन बंधा हुआ है और मसीह के किसी काम का नहीं। याद रखिए पौलुस कहते हैं रोमियो के 7वें बाब की 24वें आयत में, की कहते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, मुझे गुनाह के बदन से कौन छुड़ाएगा? डू यू अंडरस्टैंड इट? छुड़ाएगा। इसका मतलब वो भी कहीं बंधे हुए थे। बनी इस्राएल के बारे में लिखा है कि ये एक ऐसा हरन है जो फंसा हुआ है। और पौलुस जो है वो निजात याफ्ता थे कि नहीं थे? निजात याफ्ता थे, रब का बंदा था, पर कहता है मुझे कौन छुड़ाएगा? हमें निजात पाने के बाद भी याद रखिए आज़ादी की ज़रूरत होती है। अगर वो आज़ादी हमें ना मिले तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं और हम खुदा के काम के बिल्कुल बिल्कुल नहीं। याद रखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बांध के रखती हैं, हमें अपने कब्जे में रखती है। सुनो ने खुसूसियत के साथ कहा था, जाओ उसे खोल लाओ, लूज है। और मजे की बात वहां पे एक और बड़ी खास बात लिखी है, जब उसको देने के लिए गए तो उसमें खोलने लगे थे तो वो मालिक ने कहा, तुमने कभी यीशु ने कहा है कि इसको खोल दो। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, वो कहा क्यों वहां से आजाद किया गया? कलाम के वसीला से। ध्यान ना सुनो जी, अथे भी सारे जी। आजादी कैसे मिलती है? किसका कलाम था? यीशु वहां गए नहीं है, यीशु दूर ही है, पर वो गधा जो है वहां से आजाद किसके वसीला से किया गया? कलाम के वसीला से। यीशु के कलाम के वसीला से आजादी चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आजादी चाहते हैं, कलाम पे गौर करें। कलाम आजाद करता है। उस गधे के बच्चे को, उस खार को कलाम से आजाद किया। यीशु ने कहा लूज है। याद ये लाजर का वाक्या, लाजर को भी कब्र से मसीह के कलाम से आजाद किया गया, कलाम से निकाला गया। और इस गधे को भी यीशु मसीह कहते हैं जाओ भाई उन्हें जाके खोल लिया। और जब उन्होंने यीशु का कलाम उनको सुनाया, उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं रोकेंगे और ले जाओ। दो बातें होगी, पहले छुड़ाना है और फिर आजाद करना है। और तीसरी बात सुन ले, जब गधा आ गया, उस गधे के बारे में लिखा है उस पर अभी तक कोई बैठा नहीं था। ये क्यों लिखे? उस पर कोई बैठा नहीं था। इसका मतलब है कि वो अनटेम्ड डोंकी था। आपने कभी ये देखा है उनको, ये जो काउबॉयज होते हैं वो घोड़ों को
اور دوسرے جانوروں کو جب ٹیم کرتے ہیں وہ بیٹھنے نہیں دیتے کسی کو اپنے اوپر, اور وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہوا گر جائے, اس کی موت ہو جائے. لیکن یہ دیکھیں ٹیم نہیں ہے, لیکن یسوع نے بلایا اس کو لے کے آؤ, اس کو میرے پاس لے کے آؤ, مجھے اس کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے خدا کے کلام میں ایک آیت لکھی ہے, حقیقی آزاد پتہ ہے کون ہے؟ جسے بیٹا آزاد کرتا ہے. تو بیٹے نے اسے آزاد کیا, وہ آ گیا. جب آ گیا تو یہ انٹیمڈ ہے, اس پہ کوئی بیٹھا نہیں تھا کبھی, وہ کبھی ہجوم میں گیا نہیں تھا. اب وہ بڑا پنجابی چلا بولنے لگا, بڑا اکھڑ تھا, ابھی وہ خدمت کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب یسوع نے بلایا, یسوع نے حکم دیا, وہ گدھا چل کے وہاں پر پہنچ گیا اور مسیح کا غلام بن گیا. یاد رکھیں میں بڑا ایک بات کرنے لگا ہوں, وہ جتنے بن جاتا سی وہ غلامی تو چھوٹ کے آزاد ہوا, اور آزاد ہو کے مسیح کا غلام ہو گیا. مسیح ہمیں اس طرح کی غلامی میں نہیں باندھتے, ہمیں اپنی محبت کی غلامی میں باندھتے, محبت میں باندھ دیتے. اور وہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے اسے کہا آجا اب تو میرے کام کا نہیں. یسوع نے کہا میرا جوا اٹھا لو. ہاں جی, یہ ملائم نہیں ہے, یہ اچھا ہے, تمہیں پریشان نہیں کرے گا, تو میری خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اور جب وہ آ گیا تو گدھے میں ہم دو تبدیلیاں دیکھتے ہیں جی, بڑی بڑی زبردست تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں. جب وہ گدھا آ گیا سب سے پہلے اس گدھے کے کریکٹر میں تبدیلی آ گئی. کیا خیال ہے کریکٹر میں کیا تبدیلی آ گئی؟ بس بات انٹیم تھا, یا میری وہ انٹیم تھا, بالکل اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, اور وہ بالکل مسیحا کے پاس آ کے ایسے بن گئے ایسے کوئی برا ہوتا ہے, آ کے کھڑا ہو گیا. اور جب لوگ کیا کر رہے ہیں, آگے کپڑے ڈال رہے ہیں, اس کے اوپر کپڑے ڈال رہے ہیں, اور کوئی شرارتی بچے نے ہاتھ سے کھجور دیا ٹانیاں بھی پکڑیاں ہوں گی, اس کے منہ پہ بھی لگتی ہوں گی. کسی نے غصہ کیا تھا؟ نہیں, وہ بیٹھا ہوا اور خدمت کے لیے تیار ہے. یسوع کو اونچا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں کہ میں اس کے لیے استعمال ہو رہا ہوں. کیا تھا؟ گدھا تھا, لیکن یسوع نے اسے اپنے کام کا, اپنے استعمال کا بنایا. اور وہ وہاں پر کھڑا ہے اور آرام سے جا رہا ہے اور کوئی ضد نہیں کر رہا. اور میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ یہ دولتی مارتے تو تھے گدھے, لاتوں مارنے نے اڑا کر آنے اتنی خطرناک ہوتی ہے, اور بس زخمی بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور کوئی فائٹ اس کے اندر نہیں تھی, کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی مغروری نہیں تھی, کوئی پرائڈ نہیں تھا. بالکل خداوند کے لیے تیار ہے, لارڈ جی یوز می فار یور ورک, یوز می فار یور گلوری. اور وہ خدا یسوع مسیح کو لے کے آگے چلا جاتا ہے. اور ایک اور مزے کی بات سنیں, نہ صرف اس کا کریکٹر چینج ہوا, اس کا جو ہے کہہ رہے ہیں طرز زندگی بھی چینج ہو گیا. میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اسے پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ گدھا تھا جس کے بارے میں زکریا نے بھی اپنے حوالہ پڑھا. زکریا کی کتاب کے 9 باب کی 9 آیت میں اس گدھے کے بارے میں باتیں کی ہوئی تھی. تو کیا خیال ہے, کوئی چھوٹا موٹا گدھا ہوگا, کوئی میرے ورگا, تو وہ کہتا جی میں کوئی مذاق گدھا نہیں, میں بڑا اسپیشل گدھا. اور زکریا نبی نے 9 باب کی 9 آیت میں میرا ذکر کیا ہوا ہے, میرے کول نہیں آنا, مینوں دھیان نال ہاتھ لانا ہے. Don't dare come near me. I'm a very special goat. میں بڑا اسپیشل, میرا بائبل میں ذکر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغروری نام کی کوئی چیز گدھے میں نظر نہیں آتی, بلکہ وہ یسوع کو اٹھا کے چل رہے, کہنا ہے میرے تو نہ دیکھو, ڈونٹ لک ایٹ می, لک ایٹ ہم. میرے بارے میں تو ایک پیشین گوئی موجود ہے, اور جڑا میرے اوپر بیٹھا ہے پوری بائبل اس کے بارے میں. سو اس کی طرف تکو, اس پہ نظر کرو, اس کو اپنے دل میں آنے کی جگہ دو. تو پیارے بھائیو 3 باتیں ہم نے سیکھی, دھیان سے سنیے گا, وقت کی قلت سے ہم جلدی جلدی اس کو کرنا طریقہ. پہلی بات, چھڑایا جانا ہے, آزاد کیا جانا ہے, اور پھر استعمال کیا جانا ہے. یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. خدا ہمیں چاہتا ہے ہم بھی سبق سیکھیں, ہمیں بھی یسوع کے خون سے دھلنا ہے, ریڈیم ہونا ہے. اس کے بعد ہمیں یسوع کی قدرت اور قوت اور کلام سے آزاد ہونا ہے, اور پھر یسوع کے لیے استعمال ہونا ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خوبصورت ایک گدھے کو لے کے, how illustrative that is, that donkey or that colt there in the Bible. It teaches you a lot about Christian life. We can find so many similarities between the colt and a
Christian or a human being. Remember that. اور ابا جی نے سے کوشچن کیا کہ وہ ناپاک تھا تو اس لیے اس کا فدیہ دینا ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا بڑا زبردست یہ آرگیومنٹ ہے کہ اس لیے اس کا دیا گیا. لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ گھوڑا بھی ہے اور اونٹ بھی ہے اور بھی ہے, اس کا کیوں؟ تو جو میں ریزن ڈھونڈ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ گدھے اور انسان کے درمیان بڑی مواصلت ہے. خدا چاہتا ہے ہم سبق سیکھیں کہ اگر میں گدھے کو نہیں چھوڑ رہا, میں چاہتا ہوں وہ بچے جو تھوڑے ور گئی کافی حد تک, تو میں تمہارے لیے کتنا زیادہ چاہتا ہوں کہ تم بچو, نجات پاؤ, آزاد ہو اور میرے لیے استعمال ہو. آمین. خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ان باتوں پہ غور و فکر کرنے, ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے